Assalamu alaikum students. Yesterday we covered different types of forecasting error methodologies, that why some companies can face different types of forecasting errors. Since all the multinational companies, they are interested in different types of forecasting methods because they want to know, is there any possibility that they can face some types of exchange rate fluctuations. Because of that, multinational companies go for different types of forecasting techniques. Now what those forecasting techniques are, that has been completed in our previous lectures, but on the basis of those forecasting techniques we also discussed that there is a possibility कि जब आप forecasting करते हैं तो 100% उसके results आपको achieve ना हो, because you cannot predict 100% accurately the upcoming exchange rates in future. So due to that, there is a possibility that you can go for or you may face some type of forecasting error. Now what type of forecasting errors you can face? You can judge that on the basis of one thing you can see on the graph papers. Say for example, आपने previous past trends का data draw कर लिया, and then you can see whether your fitted line is exactly a straight line, and that is the one by which you can reduce or minimize or completely eliminate the errors. Plus, we also said that there is a possibility that you can go for the regression analysis, and then you can see how much one currency has dependence over the other currency. But the objective of the regression analysis is that you want to see the relationship between two variables or between two currencies in terms of dependence of one currency over the other, and you want to see that how much one currency is dependent on the other one. And plus, the analysis should be based on the way that the errors must be minimized or eliminated. So that is the agenda of your regression analysis. Then we also discussed that due to the importance of forecasting techniques, different types of investment banks, commercial banks, and also some types of consulting firms have also offered these types of techniques by which they can provide you consultancy on forecasting services. Because they know कि multinational companies को बहुत ज़्यादा importance feel होती है for their forecasting, since they want to avoid any type of exchange rate fluctuation. What happens in that case is that they are trying to go for the way, or they are trying to offer you the services from investment banks point of view, या फिर commercial banks कह लें या consulting services कह लें, कि वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं उन मल्टीनेशनल को जो फोरकास्टिंग खुद से नहीं कर सकते, एंड दे वांट टू गेट सम टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल advice. So in that case, forecasting services are quite common in that regard. Then we also discussed there is a possibility that forecasting bias you might see. That आपने तो use कर लिए forecasting techniques, आपने okay fine, maybe आपने consultancy achieve कर ली, या आपने किसी commercial bank से या फिर किसी investment bank से आपने अपनी forecasting करवा ली. There is a possibility कि उसमें कोई biased results हो. That means वो exactly accurate ना हो, the errors के हमेशा chances होते हैं. So you have to consider कि जब भी आप forecasting करते हैं या करवाते हैं, there is a possibility कि you should not get 100% of accurate result. There is a possibility कि forecasting error बीच में आए. Then we also discussed the purchasing power parity argument, and we suggested or it was suggested that diversification's argument क्या है. One was that the companies or the multinational companies should go for the diversified of portfolios या फिर diversified type of currency portfolios, जिसमें ये था कि अगर कोई multinational company किसी different countries में वर्क करती है, इन दैट केस फॉर एग्जाम्पल आपकी पेरेंट कंपनी के पास 20 सब्सिडरीज हैं जो कि डिफरेंट किस्म की कंट्रीज में काम कर रही हैं. व्हाट विल हैपन इन दैट केस? किसी एक कंट्री से अगर उनको लॉस हो रहा है तो दूसरे कंट्री से मे भी उनको प्रॉफिट हो जाए. जब इसको आप एक्सचेंज रेट की टर्म्स में लेते हैं, सो इफ यू आर डूइंग बिजनेस विद 20 कंट्रीज, तो अगर आपको किसी एक कंट्री से ड्यू टू वॉलेटिलिटी एक्सचेंज रेट में बहुत ज्यादा डिविएशन आती है और वहां से लॉस होने का चांस है, सो सिंस योर बिजनेस इज इन 20 डिफरेंट कंट्रीज एंड यू आर डीलिंग इन 20 डिफरेंट करेंसीज, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब आप फाइनल सम अप करें तो आपको बजाय लॉस के उसमें प्रॉफिट ही आए, क्योंकि किसी एक कंट्री से अगर लॉस होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दूसरे कंट्री से उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है. बट अगेन देन वी सेड दैट इट्स नॉट 100% श्योर कि डाइवर्सिफिकेशन टेक्निक विल पे यू ऑफ. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डाइवर्सिफिकेशन, यस वी ऑलवेज सजेस्ट इन फाइनेंस दैट डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है. बट इन दिस रिगार्ड, येस, व्हेन यू आर गोइंग टू हैव योर इन्वेस्टमेंट इन से फॉर एग्जांपल 20 कंट्रीज, पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स अचीव हो सकते हैं.
There was another argument on diversification which was कि आप अगर अपने स्टेक होल्डर्स से, फॉर एग्जांपल आपके जो क्रेडिटर्स हैं या फिर आपके जो स्टॉक होल्डर्स हैं, उनको अगर आप डाइवर्सिफाई कर दें, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर अपनी कोई फाइनेंसिंग करनी है, वेदर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, आपने जो लोन्स लेने हैं वो डाइवर्सिफाइड टाइप के पोर्टफोलियो से उठाएं, दैट मीन्स कि डिफरेंट टाइप के कंट्रीज में उठाएं, सो आपको एक्सचेंज रेट रिस्क जो होगा वो आप बेसिकली उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। बिकॉज जब आपकी, एक तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि आप उसको किस तरह से हेज कर सकते हैं, बट डाइवर्सिफिकेशन आर्ग्यूमेंट क्या है कि आप अपना पोर्टफोलियो, वेदर यू आर डूइंग बिजनेस या फिर आप अगर कोई लोन्स ले रहे हैं या क्रेडिटर्स की पोजीशन ले रहे हैं या फिर आप स्टॉक होल्डर्स हैं, इन दैट केस अगर आप डाइवर्सिफाई कर दें अपनी कंपनी के पोर्टफोलियो को, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन विल पे यू ऑफ, क्योंकि आपने अगर बहुत सारे डिफरेंट करेंसीज में, डिफरेंट कंट्रीज में इवन इन्वेस्टमेंट की है या फिर फाइनेंसिंग की है, व्हाट विल हैपन इन द एंड कि आप करेंसी फ्लक्चुएशन को या एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन को हेज कर सकेंगे थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, बट अगेन 100% गारंटीड नहीं है। We also said when you are talking about the exchange rate fluctuations, so there is a possibility that the multinational companies can face different types of exposure or different types of exchange rate risk. One of them is when you are facing exchange rate fluctuation, या फिर आप जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर जब आप कोई इंटरनेशनल बिजनेस में डील करते हैं, तो जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस होती हैं उसमें आपका एक्सपोजर किस टाइप का हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फेस द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, इन विच वी सेट कि आपकी जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं उन पर जितना इफेक्ट आएगा किसी आपके एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। So when you are talking about the exchange rate movements या exchange rate fluctuations, so transaction exposure वो होगा कि अगर आपकी किसी फर्म ने, आप मल्टीनेशनल कंपनी ने कहीं पेमेंट देनी है या कहीं से पेमेंट लेनी है, कैश इनफ्लो होना है या कैश आउटफ्लो होना है, इन बोथ केसेस अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से इस ट्रांजैक्शन पे कोई इम्पैक्ट आता है, so that will be called your transaction exposure. Today we will cover the economic and translation exposure, by which we will see कि आप किस तरह से इन exposures को basically आपकी multinational company expose हो सकती है, and then how you can basically try to avoid these types of exposure by using different types of techniques. So today we will cover the economic and translation exposure especially, but first let's cover the transaction exposure. A multinational exposure can be measured by considering the proportion of each currency together with the currency's variability and correlation among the movement of the currencies. ये आपका लिंक है, बेसिकली वी आर कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो हमने कल पिछले लेक्चर में हाफ कंप्लीट किया था। वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट दैट वन फर्स्ट, कि आपका जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसका जो एक्सपोजर है दैट कैन बी कंसिडर्ड फर्स्ट बाय योर एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स या वेरिएबिलिटी जो होती है एक्सचेंज रेट की या करेंसी की, कि वो कितना वेरी करती है मीन वैल्यू से, कितना डिविएट करती है, कितना वेरिएशन आती है करेंसी में या एक्सचेंज रेट में। ऑन द अदर हैंड वी कैन ऑल्सो गो फॉर द कोरिलेशन। कोरिलेशन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि कोरिलेशन रिलेशनशिप है या एसोसिएशन है बिटवीन टू करेंसीज, कि अगर एक करेंसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है या पॉजिटिवली मूव कर रही है तो दूसरी करेंसी वेदर इट मूव्स पॉजिटिवली और नॉट, अगर दोनों की दोनों करेंसीज पॉजिटिवली मूव कर रही हैं along with each other, that means they are positively correlated. However, on the other hand, if one is moving up and the other one is moving down, कि अगर एक करेंसी की वैल्यू ऊपर होती है दूसरी करेंसी की वैल्यू वीक होती है, दैट मीन्स अगर एक करेंसी स्ट्रेंथन होती है दूसरी करेंसी वीक होती है, सो इट मीन्स जब आप उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली एक की वैल्यू ऊपर जाएगी दूसरी की वैल्यू नीचे जाएगी। That type of relationship is called negative relationship or negative correlation, because in that case one currency is strengthening and the other one is weakening. So in that case जो correlation की जो आपकी values होंगी that will be in terms of negative, because that is called negative correlation. और जब हमने पॉजिटिव की बात की तो जब आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो जूं जूं एक करेंसी स्ट्रेंथन हो रही है दूसरी करेंसी along with the same line स्ट्रेंथन हो रही है, and that is called positive correlation.
Finally, the other one is also called, the third term which is in correlation is called zero correlation, where there is no relationship between the two currencies and you cannot find any association between the two, and the answer in terms of mathematical terms is equals to 0, where we find that both the currency don't have any type of relationship between each other and they are having a no association, or there is zero correlation. So when we are talking about this thing, that when we are talking about the transaction exposure, so a multinational company exposure can be measured by considering the proportion of each currency together with the currency's variability, कि कितनी एक currency दूसरे currency से vary कर रही है, कितना change आ रहा है, plus the correlations, कि एक करेंसी से दूसरी करेंसी का कितना रिलेशनशिप है और कितना सेंस ऑफ एसोसिएशन है, वेदर पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नेगेटिवली कोरिलेटेड है या जीरो कोरिलेशन है अमंग द मूवमेंट ऑफ द करेंसीज. सो अगर हम बात करें टू करेंसीज पोर्टफोलियो की, पोर्टफोलियो एज वी सेड के पोर्टफोलियो एक आप ये कह लें बास्केट है फॉर एग्जांपल, इन विच यू पुट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स and then you try to see that how you can diversify your risk. तो अभी आप बात करें टू करेंसीज पोर्टफोलियो की, आपने करेंसीज की वेरिएबिलिटी और कोरिलेशन देखनी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर ट्राइंग टू डिसाइड कि आपने किस करेंसी को चूज करना है या इनकी आपस में कितनी वेरिएशन आ सकती है, कितनी सेंस ऑफ एसोसिएशन है और आपका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, आप ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में कितना एक्सपोज होंगे, कितना वेरिएशन आएगी, क्योंकि कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शंस हैं. ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में डील करने के लिए आपने देखना है कि दोनों करेंसीज में कितनी वेरिएशन और कितनी कोरिलेशन आएगी. अब क्योंकि आप दो करेंसीज में डील कर रहे हैं, सो लेट्स डिस्कस द एग्जांपल ऑफ फॉर अ टू करेंसीज पोर्टफोलियो. दिस इज द फॉर्मूला वेर यू कैन सी कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में आपका टू करेंसी पोर्टफोलियो जहाँ पे आप चेक करना चाह रहे हैं कि कितनी वेरिएबिलिटी और कितनी कोरिलेशन है आपस में, सो यू कैन प्लग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला बिकॉज दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन which is basically square root of variance. ये जो आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है जो स्क्वायर रूट के अंडर है, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू सिग्मा. जो आपकी सिग्मा की वैल्यू है या स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू है, दैट बेसिकली कैप्चर्स द डिविएशन फ्रॉम मीन, कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू से या आपकी मीन वैल्यू से कितना एक्सचेंज रेट डिविएट कर सकता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिसाइड कि आपको ये ट्रांजैक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर इस ट्रांजैक्शन में आप कितना रिस्क फेस कर रहे हैं. When mathematically or when statistically you are trying to capture the impact of risk in finance, so that is basically denoted by sigma, which is, so when statistically, as we said that we have to check for the risk analysis, or in finance when you have to see कि कितना risk involve है या कितनी percentage risk involve है, so that is denoted by this. आपका sigma है basically रिस्क कैलकुलेशन है, विच डिनोट्स के आपके पास कितना रिस्क ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकता है और कितनी वैल्यू आ रही है, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन डिसाइड कि आपने इतना एक्सपोज होना है इन दिस ट्रांजैक्शन. पी इन दिस बेसिकली रिप्रेजेंट द पोर्टफोलियो. तो आपका बेसिकली पोर्टफोलियो है विच हैव टू टाइप्स ऑफ करेंसीज. WX जो आपका ये वाली वैल्यू आ रही है, WX दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू इन दैट इज इन करेंसी X. तो कितना वेट असाइन हुआ है इस करेंसी का, जो करेंसी X है, कितने परसेंट करेंसी X इन्वॉल्व है, देन प्रोपोर्शन ऑफ टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू दैट इज इन करेंसी Y. तो आपका जो करेंसी Y का वेट है वो यहां पे आ रहा है कि आपने कितना वेट असाइन किया है ऑन योर करेंसी Y. जब आप पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें करेंसी X की कितनी वेटेज है और करेंसी Y की कितनी वेटेज है. दिस इज बेसिकली सिग्मा X एंड दिस इज सिग्मा Y. सो सिग्मा X इज दिस वैल्यू and sigma Y is this value, where it calculates the standard deviation of monthly percentage change in currency X. तो currency X में जितना monthly change आया वो ये capture करेगा और currency Y में जितना monthly change आया है वो ये value calculate करेगी. Finally
correlation of x and y, so how much correlated both currencies are, कि वो कितना मूव कर सकती हैं एक दूसरे के साथ, whether they are negatively correlated or positively correlated or there is no correlation. So correlation x की जब हम बात करेंगे, so that is correlation coefficient of monthly percentage changes between currency x and currency y. Since this analysis is on monthly basis, so we can see कि आपका monthly percentage change between currency x and currency y कितना है, या उन दोनों में sense of association कितनी है on monthly basis. So that will be captured with this formula. तो जब हम बात करते हैं total overall चेक करने की कि किसी पोर्टफोलियो का कितना एक्सपोजर हो सकता है या कितनी उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन आ सकती है या कितनी वेरिएशन आ सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि वेट कितना है करेंसी एक्स का, कितनी परसेंटेज असाइन की गई है करेंसी एक्स को, कितनी परसेंटेज असाइन की गई है करेंसी वाई को, कितना मंथली या एनुअल जो भी आपका बेसिकली आ रहा है, जो आपका टाइम स्पैन है, कितना टाइम स्पैन एलोकेटेड है ऑन करेंसी एक्स और कितना टाइम स्पैन एलोकेटेड है करेंसी वाई, मंथली ही है, ओके फाइन, दोनों का सेम होगा, प्लस कितनी स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स में पॉसिबल है और कितनी वाई में पॉसिबल है, एंड फाइनली यू शुड नो कि कितनी कोरिलेशन या सेंस ऑफ एसोसिएशन है बिटवीन टू करेंसीज, इन दिस केस वी आर हैविंग एक्स एंड वाई. So the standard deviation statistic measures currency variability. तो जो आपकी standard deviation होती है उसके जो statistics हैं that measures the currency's variability. Correlation coefficient जो है that indicates the degree to which two currencies move in a relation to each other. तो जो आपकी हमने बात की स्टैंडर्ड डिविएशन की, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट बेसिकली कैप्चर द वेरिएशन इन द डेटा. तो जो वेरिएंस की आपके पास वैल्यू आती है उसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लें, सिग्मा स्क्वायर फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू आती है वेरिएंस की, आप सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल हो जाता है और आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाती है विच इज स्टैंडर्ड डिविएशन. तो जब भी स्टैंडर्ड डिविएशन की बात आएगी तो हमेशा माइंड में रखें कि स्टैंडर्ड डिविएशन कैप्चर करता है वेरिएशन को इन एनी डेटा कि कितनी वेरिएशन आ रही है, बट इन स्क्वायर रूट फॉर्म के आप उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं. स्टैटिस्टिक मेजर्स करेंसी वेरिएबिलिटी जो कि आपने स्टैंडर्ड डिविएशन का कहा. कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर्स दैट इंडिकेट द डिग्री टू विच टू करेंसीज मूव इन रिलेशन टू ईच अदर. जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अगर दोनों करेंसीज दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उस केस में आपके पास क्या होगा, ये कर्व आएगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड. अगर आपके पास नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगी तो ये कर्व ग्राफ पे जब आप ड्रॉ करेंगे आएंगे, क्योंकि आपके पास नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक की वैल्यू इंक्रीज कर रही है दूसरे की वैल्यू डिक्रीज कर रही है. इन दिस केस अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है, 100% पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो आपका जो कोएफिशिएंट है दैट विल बी 1. अगर इस केस में जो नेगेटिव कोरिलेशन है इसमें आपका कोएफिशिएंट आएगा -1 बिकॉज परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है. और द केस वेयर यू फाइंड कि आपकी कोई कोरिलेशन नहीं है तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है क्योंकि दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है और उसका जो कोएफिशिएंट आता है दैट इज इक्वल्स टू 0. तो दो चीजें एक आपको पता होनी चाहिए जब आप बात करें ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की. फर्स्ट थिंग कि डेटा में कितनी वेरिएबिलिटी है या कितनी स्टैंडर्ड डिविएशन अवेलेबल है, कितनी वेरिएशन या कितनी डिविएशन है डेटा में. ऑन दी अदर हैंड यू शुड नो कितनी सेंस ऑफ एसोसिएशन है बिटवीन टू करेंसीज कि वो कितना मूव कर सकते हैं आपस में, वेदर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड या फिर नो कोरिलेशन. सो दैट्स हाउ यू चेक द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. Both variability and currency vary among currencies and over the time. Because जब आप बात करते हैं करेंसीज में, से फॉर एग्जांपल डॉलर और पाउंड की बात करें तो से आज उनकी जो सेंस ऑफ एसोसिएशन है दैट इज 90%. इन दैट केस यू कांट से कि डॉलर और पाउंड 90% कोरिलेटेड एंड दे विल रिमेन 90% कोरिलेटेड बिकॉज दे आर स्ट्रांगली positively correlated with each other. No, because of the change in the value and because of the market forces, since we know कि currency अपनी value strengthen भी करती है, weak भी करती है, in that case obviously sense of association भी change होती रहेगी. सेम गोज विद द वेरिएबिलिटी ऑल्सो कि वेरिएशन भी डेटा में चेंज होती जाएगी या वेरिएशन बिटवीन द टू करेंसीज विल ऑल्सो चेंज. सो यू कैन नॉट से कि दोनों की जो वेरिएबिलिटी, दो करेंसीज की जो वेरिएबिलिटी है दैट विल लिव लाइक दैट और दैट विल स्टे लाइक दैट. सो इट विल बी लाइक कि आपके पास अगर दो करेंसीज में वेरिएबिलिटी या स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है या फिर कोरिलेशन आ रही है दैट विल चेंज ओवर टाइम.
तो जो करेंसी स्ट्रेंथन होगी या वीक होगी, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा में वेरिएबिलिटी और सेंस ऑफ एसोसिएशन या कोरिलेशन भी चेंज होगी. Now, the standard deviation statistic measure the degree of movement for each currency. In any given period, some currencies clearly fluctuate much more than other. So it's not necessary कि कुछ currencies जो हैं या फिर सारी currencies same lines पे fluctuate करती हैं. Since we have discussed कि जिस तरह emerging market economies and their currencies move very or their nature of movement is quite volatile. So you cannot predict कि सब currencies एक ही line पे fluctuate करती हैं and on and off वो उसी तरह से ही fluctuate करती हैं. No, some currencies clearly fluctuate much more than the other ones. For example, the standard deviation of the monthly movements in Japanese yen and the Swiss franc are typically more than twice that of the Canadian dollar. So generally तो standard deviation जो monthly movements हैं between Japanese yen and Swiss franc, that is typically more than twice of that of कैनेडियन डॉलर. अब डिपेंड करता है कि कौन सी करेंसी कितनी स्ट्रांग है कि उसमें मूवमेंट या फ्लक्चुएशन कम है या ज्यादा है. बट अगेन यू कैन नॉट से कि सब की सब करेंसीज में सेम टाइप की फ्लक्चुएशन आती है. एज वी हैव सीन इन दिस एग्जांपल कि जापानीज येन और स्विस फ्रैंक में जो वेरिएशन है दैट इज ट्वाइस मोर देन द कैनेडियन डॉलर. तो इट डिपेंड्स कि आप किस करेंसी में डील कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू दैट जो वेरिएशन होगी वो उसी तरह मूव करेगी. Based on this information, the potential for substantial deviations from the projected future values is greater for the yen and Swiss franc than for the Canadian dollar from a US firm's perspective. तो आप अगर एक यूएस फर्म है, आपकी पेरेंट कंपनी यूएस फर्म है, इन दैट केस ऑब्वियसली जो डिविएशन या फिर जो फ्यूचर में जितनी वेरिएशन आनी है फ्रॉम यूएस पॉइंट ऑफ व्यू वो येन में और स्विस फ्रैंक में ज्यादा फील हो रही हैं एज कंपेयर टू कैनेडियन डॉलर. So on the basis of those variations, the multinational company or the parent company will decide whether they should go for this type of transaction where yen and Swiss francs are their point of concern, or they should go for the Canadian dollar transaction. So वो जो आपका transaction exposure है, you have to consider on the basis of variation and correlation between two currencies, and then you have to decide being a multinational company कि आपने इसको refuse करना है या आपने choose करना है. The correlation among currency movements can be measured by their correlation coefficients, which indicate the degree to which two currencies move in relation to each other. अभी जो हमने पिछले टेबल में बात की कि आप correlation between two currencies कैसे चेक कर सकते हैं, so that is by their correlation coefficient. कि कोरिलेशन का फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं और उसका जो कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रहती है, यू जस्ट सी दैट वैल्यू एंड देन यू डिसाइड वेदर यू शुड गो फॉर द दैट करेंसी और दैट ट्रांजैक्शन और नॉट, या फिर उस ट्रांजैक्शन या फिर उस आपके फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसके थ्रू आपको पता लगता है कि दोनों करेंसीज में कितनी कोरिलेशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है. द एक्सट्रीम केस इज perfect positive correlation which is represented by correlation coefficient equal to 1. तो जो एक्सट्रीम केस होगा लाइक कि अगर फॉर एग्जांपल एक करेंसी 2% स्ट्रेंथन हो रही है तो दूसरी करेंसी भी 2% ही स्ट्रेंथन हो रही है. आफ्टर 1 वीक करेंसी ए जो है वो 3% स्ट्रेंथन हो रही है, सो आफ्टर 1 वीक करेंसी बी जो है वो भी 3% इंक्रीज हो रही है या स्ट्रेंथन हो रही है. से आफ्टर 2 वीक्स करेंसी ए जो है वो 4% इनहांस हो रही है या अप्रिशिएट हो रही है, सो आफ्टर 3 वीक्स ओके फाइन करेंसी बी भी जो है वो 4% ही अप्रिशिएट हो रही है. व्हाट विल हैपन इन दैट केस? तो इन दैट केस जितनी मूवमेंट या जितनी चेंज करेंसी ए में आई उतनी ही एग्जैक्ट चेंज अगर करेंसी बी में भी आ रही है, दैट मीन्स दे आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड. उतना ही चेंज एक करेंसी ए में जितना आ रहा है उतना ही करेंसी बी में भी आ रहा है. इन दैट केस यू विल गेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इक्वल्स टू 1. ऑन द अदर हैंड फॉर एग्जाम्पल अगर करेंसी ए 2% एनहांस होती है या अप्रिशिएट होती है जबकि करेंसी बी 1.5% होती है अप्रिशिएट. आफ्टर 2 वीक्स करेंसी ए जो है वो 3% इनहांस होती है, अप्रिशिएट होती है, और करेंसी बी जो है वो 2% अप्रिशिएट होती है. नाउ यू कैन सी कि वैल्यूज चेंज आ रही हैं दोनों करेंसीज की. व्हाट विल हैपन इन दैट केस? दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड बट उसका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं होगा क्योंकि दे आर नॉट परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज के साथ कोरिलेट नहीं कर रही.
So in that case, basically, what you will do is you will see how much one currency is correlated with the other currency, or whether they are positively correlated या negatively correlated. और अगर positively correlated है तो strongly correlated है या weakly correlated है. से अगर 10% पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है कोरिलेशन का, दैट मीन्स पॉजिटिव तो कोरिलेट कर रही हैं दोनों करेंसीज, बट दे आर वीक कोरिलेटेड, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कोरिलेटेड नहीं है. Correlation can also be negative, reflecting an inverse relationship between individual movements. The extreme case can be -1. अब जिस तरह हमने पिछले केस में बताया कि आपकी जो करेंसीज हैं वो अगर एक करेंसी 2% इन्हांस हो रही है तो दूसरी करेंसी 2% इन्हांस हो रही है या अप्रिशिएट हो रही है. इन दिस केस से फॉर एग्जाम्पल जो हम -1 की एग्जाम्पल ले रहे हैं, इन दिस केस अगर करेंसी A 2% अप्रिशिएट हो रही है और करेंसी B 2% डेप्रीशिएट हो रही है, आफ्टर अ वीक करेंसी A 3% अप्रिशिएट हो रही है और करेंसी B 3% डेप्रीशिएट हो रही है. सो अगर एक करेंसी उसी परसेंटेज के साथ अप्रिशिएट होती जाए और दूसरी करेंसी उसी परसेंटेज के साथ डेप्रीशिएट होती जाए, what will happen in that case? They will be exactly or completely perfectly negatively correlated. दैट मीन्स कि अगर एक करेंसी में पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है 2% की, दूसरी में नेगेटिव मूवमेंट आ रही है 2% की, पहली में 3% पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है, दूसरी में 3% नेगेटिव मूवमेंट आ रही है, तो दे आर इनवर्सली रिलेटेड. And in that case, your correlation coefficient, by applying that formula, you will get the answer equals to -1. However, take the same example on the other way कि अगर एक करेंसी में 2% मूवमेंट आ रही है, अप्रिशिएट हो रही है, दूसरी करेंसी -1.7% डेप्रीशिएट हो रही है. अब इनका रिलेशनशिप तो नेगेटिव है लेकिन 100% सेम वैल्यूज नहीं है. ड्यू टू दैट यू विल गेट नेगेटिव कोरिलेशन एट द एंड ऑफ द फॉर्मूला और आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला, बट आंसर विल नॉट बी एग्जैक्टली परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, बिकॉज आपकी नेगेटिव रिलेशन तो है लेकिन परफेक्टली नेगेटिव 100% नहीं है. So that's how you go for the transaction exposure, where you see कि आपकी करेंसी में कितनी वेरिएबिलिटी आ रही है और करेंसी में कितनी मूवमेंट हो रही है, प्लस कितनी सेंस ऑफ एसोसिएशन है बिटवीन टू करेंसीज. So let's take the example of this table where correlation among different exchange rate movements are given. So आप देखें कि अगर आप इस टेबल को कंसिडर करें तो आपके पास जब correlation का टेबल बनता है that is in this form. अब डायगोनल में आपके पास ones आ रहे हैं. There is one good reason for that if you can judge it. क्या हो सकता है, ये 1 क्यों आ रहे हैं हमारे पास डायगोनल में? ये कोरिलेशन की वैल्यू है, आपके पास एग्जैक्ट 1 क्यों आ रही है? एक चीज तो माइंड में आती है कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड है और 100% पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, बट आप ये चेक करें कि कौन सी दो करेंसीज हैं जो आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है. Yes, you can see आपका ये जो टेबल रीड करना है आपने, see this one and this one has a perfectly positive relationship between each other, that is 1. But again on the other hand आप ये भी देख सकते हैं कि ब्रिटिश पाउंड की कोरिलेशन ब्रिटिश पाउंड के साथ ही 1 आ रही है. वो इस वजह से 1 आ रहा है बिकॉज आपके पास सेम वैल्यूज ब्रिटिश पाउंड और ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू के दरमियान ही कोरिलेशन चेक की गई है, तो ऑब्वियसली वो तो वैल्यूज सेम होनी थी. सो दैट्स व्हाई यू गेट अ डायगोनल. आप ये देखें ये सारी वो वैल्यूज हैं जो कि यूरो के साथ, देखें ये सेकंड कॉलम में आपकी कैनेडियन डॉलर के साथ आ रही है तो 1 आ रही है. तो जब भी आपका कोरिलेशन का टेबल बनता है तो आपके डायगोनल में जो है वो वैल्यूज 1 आती हैं. और इस 1 का रीजन ये है कि आप ये देख लिया करें कि वो 1 इसलिए आ रहा है कि वो उसी करेंसी को या उसी वेरिएबल को एग्जैक्ट उसी वेरिएबल अपनी ही वैल्यू के साथ कोरिलेट कर रहे हैं. दैट्स हाउ इट इज प्रेजेंटेड. सो हमने बेसिकली वैल्यूज चेक करनी है बाकी करेंसीज के साथ कि एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के साथ कितनी स्ट्रांगली कोरिलेटेड है. नाउ लेट्स सी आपके कैनेडियन डॉलर की वैल्यू विद ब्रिटिश पाउंड, दैट इज 0.35, और इफ यू मल्टीप्लाई इट विद 100 तो परसेंटेज में आपके पास आंसर आ जाएगा 35% कोरिलेटेड है विद ईच अदर. सो इट मींस कैनेडियन डॉलर और ब्रिटिश पाउंड 35% एसोसिएटेड है विद ईच अदर, विच इज अगेन आप ये देख लें ये नेगेटिव नहीं है, ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. सो इट मींस आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन है. 35%
दोनों में जो मूवमेंट है या एसोसिएशन है वो रिलेटेड है विथ ईच अदर. एक करेंसी अगर मूव करती है अपवर्ड, दूसरी भी मूव करती है अपवर्ड, बट द कोरिलेशन बिटवीन द टू करेंसीज इज 0.35 और 35%. इट इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड बट नॉट स्ट्रांगली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, क्योंकि बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन द टू. ऑन द अदर हैंड यू कैन ऑल्सो सी, अब अगर आपने ये वाली वैल्यू देखनी है which is 0.91, so this is between, ऊपर से देखें तो ब्रिटिश पाउंड है और लेफ्ट पे देखें तो यूरो है, so that means this relationship is between यूरो एंड ब्रिटिश पाउंड. so यूरो और ब्रिटिश पाउंड के दरमियान आपकी कोरिलेशन क्या आ रही है, that is 0.91, और if you multiply it with 100 so you will get 91%. now you can see कि ये positively correlated तो हैं, but whether they are perfectly positively correlated or they are strongly positively correlated or weak positively correlated. Yes, they are strongly positive correlated because 91% positive relationship reflects कि strong relationship है between the two currencies. अगर एक currency upward move कर रही है तो दूसरी भी upward move कर रही है. अगर एक currency downward move कर रही है तो दूसरी भी downward move कर रही है. But both they have the relationship between each other in terms of correlation. They are 91% correlated with each other. अच्छा जी, then you can see कि आपके पास Japanese yen जो है उसकी correlation with British pound क्या आ रही है, so that is 71% if you multiply this value with 100 और 0.71. so since we said अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो तब तो आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से, लेकिन अगर आपने ओवरऑल जिस तरह हमने कहा कोरिलेशन की जो रेंज है दैट इज बिटवीन +1 to -1, तो आपके पास जो उसकी रेंज आती है, जो रेंज है, जो वैल्यूज हैं, अगर परफेक्ट पॉजिटिव है कोरिलेशन तो आपके पास आएगी +1. अगर आपके पास है परफेक्ट नेगेटिव तो कोरिलेशन की वैल्यू होगी -1. सो जो आपकी रेंज है दैट इज बिटवीन -1 एंड 1, कि आपकी वैल्यू बेसिकली लाई करती है बिटवीन +1 एंड -1. तो इन दिस केस यू कैन सी के वेदर दिस इज +1 और -1 जो आपकी रेंज है, एंड ऑन दी अदर हैंड यू कैन सी कि क्योंकि ये रेंज है तो -1 से 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू आ सकती है, एंड ऑन दी बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू डिसाइड कि दो करेंसीज के दरमियान रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है. इफ यू सी फाइनल स्वीडिश करेंसी which is correlated with British pound with 0.83, so that means they are strongly positive correlated currencies and they have a sense of association with strong positive correlation. So that's how you read your correlation tables between two currencies कि आपने देखना है कि दो currencies के दरमियान कितना relationship आ रहा है. Then if you want to see the Canadian dollar and euro here, so ये आपका 0.48 है. You can come here जो आपका यूरो की with Japanese yen है तो 0.67 है. अगर आपने Japanese yen को स्वीडिश करेंसी के साथ देखना है तो आपके पास आ रहा है 0.64. So that's how you read these table and that's how you can see कि आपने अगर दो करेंसीज में being a parent company आपने देखना है कि sense of association between two currencies क्या है, इस टेबल को आपको रीड करना है. और दिस इज बेसिकली डिराइव बाय यूजिंग द कोरिलेशन फॉर्मूला कि दो करेंसीज की वैल्यू में से आप कैसे कोरिलेशन फाइंड करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोरिलेशन यू डिसाइड एंड वेरिएबिलिटी आल्सो कि कितनी वेरिएशन आ रही है और कितनी कोरिलेशन आ रही है बिटवीन द टू करेंसीज, एंड देन यू डिसाइड कि वेदर यू हैव टू गो फॉर दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन और नॉट, या फिर आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस के दरमियान में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस ट्रांजैक्शन में आप ज्यादा एक्सपोज्ड हैं टुवर्ड्स एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस. A multinational company cannot use previous correlations to predict future correlation with perfect accuracy. So, जिस तरह अभी हमने पिछले टेबल में बात की कि आपके ब्रिटिश पाउंड में और यूरो में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आ रही है, से फॉर एग्जांपल 0.91 की आ रही है. सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि अगले 3 महीने बाद भी ब्रिटिश पाउंड में और यूरो में 0.91 ही कोरिलेशन रहेगी. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कोरिलेशन में वेरिएशन आए,
और उस वेरिएशन की बेसिस के ऊपर या चेंज के बेसिस के ऊपर ऑब्वियसली वैल्यूज चेंज होने की वजह से तो वो तमाम का तमाम आपकी जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है वो भी चेंज हो जाएगा। सो अगर आपने फाइंड कर लिया कोरिलेशन की वैल्यू फॉर दिस मंथ, इट्स नॉट नेसेसरी कि नेक्स्ट मंथ भी इतनी ही कोरिलेशन आएगी। Nevertheless, some general relationships tends to hold over long times. तो there is again possibilities हर जगह पे हैं। there is a possibility कि अगर आप कोई बहुत strong currencies की बात कर रहे हैं so it's always possible कि for a longer period of time या hold over time कुछ अरसे के लिए वो रिलेशनशिप होल्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप अगर बात करें यूरोस की और डॉलर्स की, या फिर आप बात करें यूरोस की और पाउंड्स की, अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट फॉर अ टाइम पीरियड मे बी कुछ टाइम पीरियड के लिए वो रिलेशनशिप होल्ड करे और आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा वेरी ना करे या बहुत ज्यादा चेंज ना आए ड्रास्टिक उसमें। बट अगेन यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि हाँ एग्जैक्टली 100% नेक्स्ट मंथ में ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा। For example, movements in the values of the pounds, the euro and other European currencies against US tend to be highly correlated in most of the periods. So, जिस तरह मैंने अभी आपसे बात की कि जब आप बात करते हैं यूएस करेंसी की या डॉलर्स की, पाउंड्स की या फिर यूरोस की, so these are some strong currencies where most of the time you get a positive correlation and then you can say कि हाँ जी क्योंकि इन currencies की आपस में fluctuation बहुत ज़्यादा नहीं है so there is a possibility कि next month इतनी correlation होगी या इतनी हो सकती है। But again 100% you cannot guarantee कि क्या correlation coefficient की क्या value हो सकती है। Now consider this graph where the movements of your different types of major currencies against the dollar is given. इसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स की बेसिकली आपके मूवमेंट किस तरह से हैं कि आप कोरिलेशन देख सकते हैं कि आपकी डिफरेंट करेंसीज की आपस में कोरिलेशन क्या है। सो आपका कैनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर के दरमियान का रिलेशनशिप वी आर लुकिंग एट इट्स, आपका यहाँ तक तो आ गया पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इससे ऑनवर्ड अगर आप देखें तो ये वैल्यूज डिक्लाइन हो रही हैं जो आपकी वाई एक्सिस पे हैं, आपकी वैल्यूज नीचे की तरफ जा रही हैं। ऑन दी अदर हैंड जो आपके एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। सो दैट मीन्स वन करेंसी इंक्रीज कर रही है, अदर करेंसी डिक्रीज कर रही है। दैट शोज अ नेगेटिव रिलेशनशिप और यहां पे आपका आ रहा है पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगेन यहां पे आप देखें तो दोनों की वैल्यू ऊपर जा रही है, ये फिर से पॉजिटिव हो गया। तो ये आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सो दैट्स हाउ यू सी कि आपके पास दो करेंसीज के दरमियान आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, ग्राफ के ऊपर आप देख सकते हैं। When you are considering this one, तो ये आपका देखें डिक्लाइन कर रही है लाइन, so that means they have a inverse relationship. बिकॉज इस केस में आपके पास इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है, एक की वैल्यू ऊपर जा रही है, दूसरी की वैल्यू डिक्लाइन कर रही है। यहां से ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहां से वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। When we have this type of line, we discussed it in our previous slide, कि जब आपके पास इस तरह से रिलेशनशिप आएगा, so that is a flat relationship, that means no relationship और zero correlation. So in this case जब आपकी एक फ्लैट लाइन आ जाती है then you can decide कि इन दो करेंसीज का आपस में कोई रिलेशनशिप शो नहीं हो रहा ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। अगेन यू कैन सी दिस वन कि आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ पर क्या है थोड़ा स्टेबल हुआ है रिलेशनशिप, देन डिक्लाइन एंड देन पॉसिबली मूविंग अप इन सिंगापुर डॉलर against the US dollar. So basically when you are talking about these types of graphs and you are considering क्या इनका sense of relationship क्या है या sense of association क्या है between two currencies, so basically you are trying to see through the graphs कि ये relationship weak है, strong है, positively correlated है या negatively correlated है या फिर there is no relationship like in Indian rupee and dollar when you consider। अब आप खुद बताएं ये line अगर इस फॉर्म में जा रही है so whether it is positive or it is negative, आपके ख्याल में ये रिलेशनशिप क्या है? Now this should be an assignment for you that you can see कि अगर इस टाइप का रिलेशनशिप आ रहा है, ग्राफ पे लाइन डिक्लाइन कर रही है या इंक्रीज हो रही है, you should know it.
बाय दिस टाइम आई गेस यू शुड नो इट वेरी क्लियरली कि जब लाइन नीचे की तरफ डिक्लाइन हो रही है, सो दैट मीन्स दैट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। और इनवर्स रिलेशनशिप क्या है कि एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है जबकि दूसरे की डिक्रीज हो रही है। वो किस तरह से आपको देखेंगे कि आप ये देखें 0.8 पे थी वैल्यू, फिर उसके बाद आपकी 0.7 हो गई, फिर 0.6 हो गई, 0.5 आ रही है, यहाँ पे 0.4 आ रही है, ये 0.3 आ रही है। नाउ ऑन दी अदर हैंड यू कैन सी कि यहाँ पे वैल्यू ये आ रही थी, फिर इंक्रीज हो रही है, अगेन इंक्रीजिंग 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 बाय द टाइम। तो आपके पास इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं दोनों की या डिक्रीज। इन दिस केस एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है विच इज दिस वन, और दूसरे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। So that is called a negative relationship. You can also check this one by yourself कि कहाँ कहाँ पर आपके पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है और किन पॉइंट्स पे जाके रिलेशनशिप नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है। The value at risk method can also be used to assess exposure over longer time horizons. The standard deviation should be estimated over the time horizon in which the maximum loss is to be measured. तो एक और method है which is called value at risk that can basically assess the exposure or the exposure of the multinational companies over long period of time. एंड देन द स्टैंडर्ड डेविएशन या जो वेरिएशन आ रही होती है, या फिर जिस तरह मैंने आपको कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली मेजर है जो कि रिस्क कैलकुलेट करता है स्टैटिस्टिकली या फिर मैथमेटिकली। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैक्सिमम लॉस आपको कितना हो सकता है। तो आपके पास बेसिकली जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी that will cover or that will reflect your loss कि आप कितना उससे लॉस आपको हो सकता है। एंड इन दैट केस ऑब्वियसली जिस ट्रांजैक्शन में आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होगी दैट मीन्स आपका रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है। From an investor's point of view, investors का objective most of the time या always all the time they have कि उनके पास returns ज्यादा हो और risks कम हो। So that means if you are an investor या if you are a multinational company, what you try to do is कि आपके पास returns या revenues जितने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो और आपका जो risk involve है in all the transaction of the business that should be at the minimum. So, जब आप इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं सो ऑलवेज जो आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू है दैट इज रिकमेंडेड टू बी एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। तो जितना मिनिमम होगी स्टैंडर्ड डिविएशन इट मींस उतना ही रिस्क कम होने के चांसेस हैं, रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्टेड है और आपके पास वेरिएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा ये होती है कि वो मिनिमम पॉइंट्स पे हो सो दैट यू आर नॉट एक्सपोज टू हायर रिस्क्स। बट अगेन वी नो इट कि जब आप बिजनेस में डील करते हैं या फिर आप फॉर एग्जांपल एनी फाइनेंशियल एसेट की कोई बात करें, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू गो फॉर द फाइनेंशियल एसेट्स व्हेन यू आर फेसिंग हायर रिस्क्स दे आर अटैच्ड विद हायर रिटर्न्स बिकॉज जितना रिस्की एरियाज में आप जाते जाएंगे उतना उसके रिटर्न्स आपको ज्यादा ऑफर हो रहे होते हैं। ऑल दोज एसेट्स हु आर ऑफरिंग यू लेस रिटर्न्स दे आर बेसिकली ऑफरिंग यू लेस रिस्क्स ऑल्सो बिकॉज देर इज अ स्टैंडर्ड फिनोमिना कि जितना रिस्क ज्यादा अटैच होगा उतना रिटर्न ज्यादा होगा, जितना रिस्क कम अटैच होगा उतना ही रिटर्न उसमें कम आएगा। से फॉर एग्जाम्पल आपके गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो होते हैं वो आपको बहुत लो रिटर्न देते हैं as compared to the other transactions या as compared to the other financial assets. What's the reason? रीजन ये है कि गवर्नमेंट आपको अगर ऑफर कर रही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न्स विच इज अ बिट लोअर देन द अदर ट्रांजैक्शंस और अदर फाइनेंशियल एसेट्स बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है बिकॉज यू नो इट कि गवर्नमेंट का डिफॉल्ट करने का चांस नहीं है। So if you consider from a person who has some income or some amount to invest basically from his pensions money, तो वो इंसान जिसने 60 years के बाद कोई पेंशन मिली है उनको और he wants to invest it, so obviously he would not be willing to invest it in risky areas.
he would love to go for some type of treasury bills या government के bonds उनमें invest करे because he knows it कि in case of default या in case of any problem government will return the amount. Although चाहे उसके ऊपर returns 5% या 6% ऑफर हो रहे हो as compared to the other transaction या as compared to the other investment opportunities जिसमें आपको private firms या दूसरी companies आपको ऑफर कर रही हैं 10% return. But from the pensioner's point of view, since he wants to be protected against any type of loss, he would like to go for the transaction where he can basically earn returns with minimum standard deviation या minimum risk. So standard deviation की जब भी बात आती है, so why you are considering standard deviation? Because you are trying to capture the impact of risk attached to your transactions. When you are talking about from multinational companies, so they are trying to capture the effect of different types of standard deviation from different transactions so that they can capture the impact of risks associated with different types of their transaction exposures. So value at risk method can also be used to assess exposure over long time horizons. The standard deviation should be estimated over the time horizon in which the maximum loss is to be measured. तो वो आपका उस टाइम होराइजन में या उस टाइम पीरियड में जितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है that will be covered in this method. So that was all about the different types of transaction exposure या आप किस तरह से किन methods के through आपकी importance कितनी है standard deviation की या variation की. In our next lecture we will be going for the economic exposure and translation exposure also. But before going to that, let's review today's lecture. First of all, we discussed since the multinational companies are always willing to forecast the exchange rates and they need to know that how much they are exposed to different types of risks attached to currency fluctuations. In that case, the first method is transaction exposure, where we said that there is a possibility that जो multinational companies and they are facing the transaction exposure. Now, what is transaction exposure? That is something where the company or the multinational companies cash inflows and cash outflows are affected by the exchange rate fluctuations. So if the two currencies are dealing with each other or two countries are dealing with each other in terms of international business and you are basically dealing with two different types of currencies, so how much there is a possibility कि उन दोनों currencies की जो आपस की transactions हैं या उनकी जो fluctuations हैं due to that किसी parent company की अगर बात करें तो उसके cash inflows या cash outflows पे कितना impact होगा. अगर आप एक पेरेंट कंपनी है इन यूएस और आप डील कर रहे हैं किसी सिंगापुर में और तो डॉलर में और सिंगापुर की करेंसी में जितनी फ्लक्चुएशंस आएंगी उसकी वजह से पेरेंट कंपनी जो कि यूएस में है उसके कैश इनफ्लोज में या कैश आउटफ्लोज में कितना इफेक्ट आने का चांस है. दैट इज कॉल्ड योर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. When you are talking about the transaction exposure, then obviously there are some techniques by which you can measure how much you are basically exposed to transaction exposure. Measuring the potential impact of transaction exposure was our main point of concern today, that how much you are basically exposed towards the transaction exposure or how much you are exposed towards the exchange rate fluctuation, which will have an impact over the cash inflows and outflows of your company. So in this regard, first thing we have discussed that you have to consider when two currencies are involved in the transaction, तो उन दोनों currencies के दरमियान variation कितनी है या variability कितनी है. When you discuss the variability, so that is the variation in the values, और जब आप variation की बात करते हैं that is usually calculated through the mean, जो उसकी average value होती है उससे कितनी values deviate हो सकती हैं. जब आप एवरेज वैल्यू आपको किसी करेंसी की पता हो कि ओके फाइन दिस इज द एक्सचेंज रेट व्हिच इज द एवरेज ऑफ द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू करेंसीज, ये होना चाहिए. एंड देन हाउ मच इट इज गोइंग फार फ्रॉम दैट एवरेज वैल्यू, दैट इज वेरिएबिलिटी. तो जब ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की बात कर रहे हैं इन दैट केस जब आपके पास टू करेंसीज इन्वॉल्व हो रही हैं बिटवीन द ट्रांजैक्शन, आपको क्योंकि कन्वर्ट करना है बाय द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन, बाय द एंड ऑफ टाइम पीरियड, आपको अगर आप सिंगापुर में बिजनेस कर रहे हैं या पेरेंट कंपनी आपकी अमेरिका में है या यूएस में है, तो जो आपने कैश लेना होगा या फिर कैश पे करना होगा टू सिंगापुर कंपनी जो आपकी सब्सिडरी है, इन दैट केस यू विल बी एक्सपोज टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस. To avoid those fluctuations, you are seeing कि आप किस हद तक एक्सपोज हो सकते हैं उस ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में.
उस ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में एक्सपोज होने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो हाउ मच वेरिएशन और वेरिएबिलिटी इज एक्सपेक्टेड बिटवीन द एक्सचेंज रेट्स. सेकेंडली यू शुड नो कि इन दोनों करेंसीज के दरमियान कितनी कोरिलेशन हो सकती है. When we discuss the correlation, so correlation is a sense of association between two variables. In this particular case, when we are talking about the two different currencies, so how much two currencies are correlated with each other. So there are possibility or the range of the correlation is between -1 and +1. Where two variables when you are talking about in this case two currencies, so अगर तो एक currency positively move कर रही है दूसरी negatively move कर रही है, it means they are having a negative relationship or inverse relationship. So in that case you will get a negative correlation coefficient and you can express कि दोनों currencies में inverse relationship है और correlation coefficient की value negative आ रही है. On the other hand, you should also check whether they are positively correlated. अगर positively correlated हैं तो आपका correlation coefficient positive value quote करेगा. So in this regard, आपकी currency correlation positively correlated होने की वजह से दोनों currency same direction में move कर रही हैं. Whether appreciate हो रही हैं या depreciate हो रही हैं, but they are moving in the same lines. Then we also said कि क्योंकि range इसकी -1 से +1 के दरमियान है, so there is a possibility कि आपके पास जो आंसर आए वो -1 और +1 के बैंड के बीच में आए. अगर आपके पास 100% प्लस आंसर आ जाता है, दैट मीन्स दोनों करेंसीज 100% सेम वैल्यूज के साथ मूव कर रही हैं इन द सेम डायरेक्शंस. अगर आपके पास -1 आंसर आता है, दैट मीन्स दोनों करेंसीज मूव कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में बिटवीन विद ईच अदर. एक अगर पॉजिटिवली जा रही है तो दूसरी नेगेटिवली जा रही है. So that is called a negative relationship. So in this case, when we are talking about the transaction exposure, so the two main criteria are to see how much your company is exposed to a transaction exposure, कि आपको currencies के दरमियान variability का पता हो और दोनों currencies के दरमियान correlation का पता हो कि इनमें कितनी variation या कितनी correlation आ रही है. We also discussed that there is a possibility when you are talking about the currency correlation कि दोनों currencies के दरमियान okay fine 90% correlation है या 0.9 correlation coefficient आ रहा है. It's not necessary कि over time same correlation exist करेगी over the long period of times. पॉसिबिलिटी उन केसेस में है जहां पर आपकी करेंसीज बहुत स्ट्रांग है. से फॉर एग्जांपल अगर आप पाउंड्स की और यूरोस की बात करें, यस बोथ करेंसीज आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज दोनों यूरोप में हैं और दोनों की करेंसी मूवमेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सेम. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू. बट अगेन यू कैन नॉट जज कि कितने % कोरिलेशन आएगी या कितना कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा विच इज टुडे, एंड दैट विल रिमेन सेम ओवर नेक्स्ट 20 days या नेक्स्ट 30 days. You can predict कि okay fine दोनों strongly positive correlated है, so next 20 days में भी strong correlation होगी, but again you cannot predict कि इतने % correlated होंगी. Same goes for the variation. You cannot predict कि किस currency की दूसरी currency के against कितनी variation next time period में expected है. We also discussed that there is a possibility that you can go for another method which is called value at risk method. In this method you are going for long time horizon and you see कि long time period में variation कितनी possible है. And in this case when you are talking about the risk method, so risks are calculated by standard deviation. जब आप फाइनेंस में risks calculate करते हैं, that are always denoted by standard deviation which is the square root of variance. सो वेरिएंस बेसिकली आपकी वैल्यू चेक करता है कि कितनी वेरी कर रही है या कितनी वेरिएशन है आपकी इन दो करेंसीज में. अगर आप उसका स्क्वायर रूट ले लें, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन व्हिच रिफ्लेक्ट्स द रिस्क्स एसोसिएटेड. अब अगर आपने दो ट्रांजैक्शंस में से चूज करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन ज्यादा फेवरेबल है फॉर द मल्टीनेशनल कंपनी और उस ट्रांजैक्शन में दो करेंसीज इन्वॉल्व हैं, व्हाट यू विल डू इज यू विल सी हाउ मच रिस्क इज अटैच्ड इन दिस ट्रांजैक्शन. एंड इन दैट केस आपका रिस्क अटैच किस तरह से होगा कि आप देखेंगे कि कितना स्टैंडर्ड डिविएशन आ रही है. जितना हायर वैल्यूज होंगी स्टैंडर्ड डिविएशन की, आप उतना ही अवॉइड करेंगे उस ट्रांजैक्शन को, बिकॉज इन दैट केस यू आर एक्सपोज्ड मोर टुवर्ड्स दी रिस्क्स. सो जितना स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हायर आएगी उतना ही रिस्क ज्यादा अटैच्ड हैं. So you will go for those transaction जहां पे standard deviation की minimum values आ रही हैं या low values आ रही हैं, because in that case risks
ज्यादा नहीं है. So that was all about the transaction exposure today, which we have covered कि आपको अगर transaction exposure आपका involved है, अगर आप multinational company है, in that case two important phenomena you should know are, first one, that you should know how much variation in the data or in the values of currencies is coming. Second thing, you should know कि correlated कितनी है आपस में. That means कि किस तरह से दोनों करेंसीज की आपस में सेंस ऑफ एसोसिएशन है. If you know both of them, that means you can basically deal with different types of transaction, because in that case you would know कि आपकी कितनी वेरिएशन इन्वॉल्व है, कितनी करेंसीज में सेंस ऑफ एसोसिएशन इन्वॉल्व है, and after that you can decide whether you should choose this transaction or you should go for the other one. Because transaction exposure is something which is straight away linked with the cash inflows and cash outflows of your multinational company. So basic objective obviously आपके business का cash inflows ही है. So अगर cash inflows पे किसी चीज का impact आ रहा है currency fluctuations का, जो कि offset कर रहा है basically आपके सारे profit को, so there is no need to go for that type of transaction. अगर currency fluctuation इतनी ज्यादा है कि आपके कैश इनफ्लोज जो आ रहे हैं वो उसमें एडजस्ट कर जाता है और आपका प्रॉफिट खत्म हो जाता है, सो इन दैट केस यू डोंट नीड टू गो फॉर दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. सो बीइंग इंटरनेशनल फाइनेंस स्टूडेंट, यू शुड नो कि जब किसी कंपनी को ट्रांजैक्शन एक्सपोजर आ रहा है या ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को फेस कर रही है कोई मल्टीनेशनल कंपनी, सो यू शुड नो कि कैश इनफ्लोज या कैश फ्लो पे आउटफ्लोज पे इम्पैक्ट आ सकता है ड्यू टू दी एक्सचेंज रेट मूवमेंट. और उन एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स को कंसिडर करने के लिए यू शुड नो एग्जैक्टली हाउ मच वेरिएशन इज बिटवीन द टू करेंसीज एंड हाउ मच दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर, so that you can decide whether you should choose this transaction or you should go for another one. That was all about the transaction exposure for today. Till tomorrow for your next lecture. Allah Hafiz and thank you.